چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو علم یہ نور سے آیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 16 اور مقابلہ ہے دوسرا۔ آج دو مزید ٹیمیں ہیں جن کے درمیان بڑے ہی دلچسپ مقابلے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اول تا آخر علم دین سیکھنے کی نیت سے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ یہاں موجود حاضرین ہوں یا گھر بیٹھے ناظرین ہوں، ہمارے سوالات آپ سے بھی ہوں گے اور آپ کے جوابات پر انعامات بھی ہوں گے۔ بہت خوبصورت تبرکات ہمارے پاس نہ صرف بغداد معلیٰ بلکہ مدینہ منورہ کے بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ کی بہت خوبصورت کتابیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو تحائف میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کون سی دو ٹیمیں ہیں، آئیے ان دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں اور پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھاولپور اور ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی ہیں، تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، میری دائیں طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک جنوبی پنجاب کی ٹیم ہے تو ایک باب الاسلام سندھ کی ٹیم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا تعارف بھی لیں گے، کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں وہ بھی جانیں گے۔ اور ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں تیار رہیے، کیونکہ ان کے تعارف کے بعد میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ایک سوال ایسا کرنا ہے جس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے، اور ایک سوال ایسا کرنا ہے جس کا جواب آپ نے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے۔ موبائل اپلیکیشن کون سی ہے؟ اس موبائل اپلیکیشن کا نام ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن۔ تو تیار ہو جائیں۔ دائیں طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، ان سے انشاءاللہ تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اپنا نام بتائیں گے اور کام بھی بتائیں گے۔ میرا نام محمد رمضان، ولدیت محمد ارشاد، میں بہاولپور ادارہ مصباح القرآن کا طالب علم ہوں، کلاس خمسہ میں۔ ماشاءاللہ، 5ویں درجے کے طالب علم ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلمان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن بہاولپور میں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد خان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، چشتیاں سے آئے ہیں اور بھاولپور سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ بھاولپور میں آڈیشن ہوا، ٹیمیں کیسے سلیکٹ ہوئیں، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا چلو، یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا چلو، یہ راستہ چلے۔ ذہنی آزمائش سیزن 16 کی سیزن 16 کی ٹیم پہنچ چکی ہے جنوبی پنجاب کے شہر بھاولپور میں۔ تو آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عیادت اور تعزیت میں کیا فرق ہے؟ مریض کی عیادت سے مراد اس کو تسلی دینا یا دعا دینا، اور تعزیت کسی مرے ہوئے شخص پر اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو غمخواری کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر نماز جمعہ نہ مل پائے کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ اگر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بندہ نماز جمعہ ادا نہ کر پائے، یعنی شہر میں ہر جگہ نماز جمعہ ادا ہو چکی ہو، تو وہ بندہ نماز ظہر ادا کرے۔ ماشاءاللہ جناب، بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی سلیکشن بھاولپور کے آڈیشن میں ہوئی۔ بائیں طرف میرے سندھ ٹنڈو آدم سے اسلامی بھائی آئے ہیں، ایک طرف غالباً سرائکی بولنے والے ہیں، دوسری طرف سندھی مانو آئے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں جناب
अपना अपना नाम भी बताएंगे और अपनी मसरूफियात भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जमशेद रज़ा बिन सादिक अली है और मैं जामिअतुल मदीना के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन टंडो आदम टीम में हुई है। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अत्तारी, वल्दियत मोहम्मद अफजल। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ हाला न्यू डिस्ट्रिक्ट मटियारी से है और जामिअतुल मदीना मरकज़ी नवाबशाह का 6 ईयर का तालिब इल्म हूँ। टंडो आदम टीम में मेरी सिलेक्शन हुई। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी है और वालिद साहब का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं टंडो आदम जामिअतुल मदीना के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। पहले भाई कौन से शहर से हैं? मैं गम्बट शहर से। अच्छा, गम्बट, मटियारी और टंडो आदम, यानी सुभान अल्लाह, सिंध की धरती से नुमाइंदगी लेकर ये टीम आई है। और ये खूबसूरती है ज़हनी आजमाइश की कि बाज़ औक़ात जिस शहर में ऑडिशन नहीं होता तो उस शहर के इस्लाम करीबी शहर ट्रैवल करते हैं और मेहनत करके जाते हैं और वहाँ सेलेक्ट होते हैं। आइए दिखाते हैं टंडो आदम की टीम, जो कि माशाल्लाह 3 मुख्तलिफ शहरों की आज नुमाइंदा टीम है, सिंध की टीम है, कैसे सेलेक्ट हुए हैं उसके कुछ मनाजिर देखते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बाबुल इस्लाम सिंध के शहर टंडो आदम में। तो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। मीज़ान पर भारी 2 अमल कौन से हैं? सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न अखलाक अपनाओ और खामोशी इख्तियार करो कि ये 2 अमाल बदन पर हल्के हैं जबकि मीज़ान पर बहुत भारी हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, ये दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। कलाम का मक्ता सुनाए। नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा पे लिल्लाहु इनायत, इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वाह बटे थे। ये भी हो सकता है, 2 मक्ते हैं इस कलाम के। चले माशाल्लाह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाअल्लाह जनाब, ये दोनों टीमों का हमने तारुफ भी लिया, ऑडिशन के बारे में जाना। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपका, आपसे एक सवाल किया जाता है और उसका आप जवाब देते हैं। कल भी हमने एक सवाल किया था, उसका जवाब भी होगा, उसकी कुरानदाजी भी होगी। मगर आज का सवाल क्या है? आज का सवाल जो नाज़रीन से है, जिसका जवाब आप प्रोग्राम के आखिर से पहले दे सकते हैं। खादिमुन नबी किस सहाबी का लक़ब है? नाज़रीन से सवाल है, खादिमुन नबी किस सहाबी का लक़ब है? और एक सवाल हम करते हैं, जो ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर आपने जवाब देना होता है। अगर अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए, रोज़ जवाब दीजिए, दुनिया में कहीं भी हैं, हो सकता है आप तक भी तोहफा पहुंच जाए, क्योंकि रोज़ाना क्विज एप्लीकेशन के 5 लकी जो ड्रॉर होते हैं, जो जीतते हैं, उन तक तोहफे पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि दांत से नाखून काटने का क्या हुक्म है? 4 ऑप्शन हैं, हराम है, मुस्तहब है, मकरूह है या मुबाह है। इन 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। दांत से कुछ लोग नाखून कतरते रहते हैं, तो उसका शरई हुक्म भी आज हम जान लेंगे। आइए चलते हैं, जो कल सवाल किया गया था उसका जवाब भी और उसकी कुरानदाजी। कल जो सवाल किया गया था सिलसिले के आखिर में SMS के ज़रिए जिसका जवाब देना था, सवाल ये था कि उस मस्जिद का नाम बताएं जहां किबला तब्दील हुआ। तो दुरुस्त जवाब है मस्जिद क़िबलतैन। चंद मुंतखब नाम हमारे पास हैं। अच्छा, कुरानदाजी के नाम ऐलान आप करेंगे। जवाब सवाल को थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ। एक्चुअली उस वक्त तो ये मस्जिद क़िबलतैन नहीं होगी, ये नमाज पढ़ी गई थी और बाद में इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन रखा गया। उस मकाम पर गोया बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद तामीर की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मकाम जहाँ पर तहवील क़िबला हुआ, अब वहाँ जो मस्जिद मौजूद है उसका नाम क्या है? तो सही जवाब है मस्जिद क़िबलतैन। अब कुरानदाजी कीजिएगा। सिलेक्टेड नाम है हमारे पास मोहम्मद समीउल्लाह तारी, आरिफ वाला, मोहम्मद तैयब वाकेंड, बिनते मोहम्मद सादिक सोहरवर्दी लाहौर, बिनते मोहम्मद मुनीफ फतेह जंग, जुनैद असलम कराची, उम्मे अहमद टेक्सला, उम्मे अली हैदर सियालकोट, मोहम्मद सईद अत्तारी टिबा सुल्तानपुर, बिनते नूर मोहम्मद कुनरी सिंध, बिनते जावेद अत्तारिया मामू कांजन, उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, बिनते अशरफ अत्तारिया पाक पतन शरीफ। आज जिस खुश नसीब का नाम कुरानदाजी में निकल रहा है वो हैं जुनैद असलम कराची।
तो जुनेद भाई आप हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं और स्टूडियो में आकर अपना तोहफा वसूल कर सकते हैं, और जिस SMS पर नंबर पर SMS किया था उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले जनाब, जुनेद भाई को मुबारक हो कि आज का तोहफा पहला उन्हें मिल गया है। नाज़रीन, कल प्रोग्राम हुआ जो कि ज़हनी आजमाइश का पहला प्रोग्राम था। मुल्तान और सियालकोट की टीमों के दरमियान कौन सी टीम आगे गई, आइए कुछ मनाजिर आपको पिछले प्रोग्राम के दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश 16वां सीजन है और आज उसका गोया आगाज हो रहा है। पहला प्रोग्राम है इंशाअल्लाह इस सिलसिले का और ये मरहलावार आगे बढ़ता जाएगा। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फर्क दोनों टीमों में इस वक्त तो एक नंबर से मुल्तान आगे है। अगर पांचों के 5 सियालकोट वाले गलत जवाब दें तो मुल्तान जीतता है, वरना सियालकोट वाले आगे बढ़ जाएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बारे शरीयत आला हजरत ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। जनाब, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आज पहला मुकाबला सियालकोट की टीम आगे बढ़ गई है। मुल्तान वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, मगर दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है। आपको मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, आपने देखा कि कल का मुकाबला किस तरह सियालकोट वाले आगे बढ़ गए। लेकिन जनाब, हर टीम जो पहले राउंड में पीछे रहेगी उसको एक मौका ज़रूर मिलेगा, तो दिल छोटा नहीं करना। ज़ाहिर टंडो आदम और भावलपुर से एक टीम तो आगे जाएगी, मगर जो टीम पीछे रहेगी उसे भी एक मौका दिया जाएगा। आइए बताते हैं नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल। इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है? सुभान अल्लाह। ज़हनी आजमाइश भी अगर अच्छी नीयतों के साथ शिरकत की जाए तो वो इल्म की मजलिस है। आइए गौर कीजिए कि इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज अदा करने, 1000 बीमारियों की इयादत करने और 1000 नमाज जनाजा में शरीक होने से बेहतर है। क्या बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज और 1000 बीमारों की इयादत और 1000 जनाजों में शिरकत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। आप जरा गौर कीजिए, अगर हम इज्तिमात में जाते हैं, दावत इस्लामी के तहत मदनी काफिलों में जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते हैं, इस तरह के मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखते हैं और इल्म दीन की नीयत से देखते हैं, तो इंशाअल्लाह कितनी फजीलतें मिलेंगी। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की मुबारक मजलिसों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सोने का बिछौना पेश किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सोने का बिछौना लेकर हाजिर हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, इसे वापस भेज दो। अगर अल्लाह पाक, मगर मैं चाहूँ तो अल्लाह पाक मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ खड़े कर दे। बड़ा नरम सा, बड़ा मुलायम सा बिस्तर बनाकर नबी पाक के लिए भेजा गया, क्योंकि आका चटाई पर आराम करते थे, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो नरम मुलायम बिस्तर भी ये कहकर वापस कर दिया कि मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलें, मगर मेरे आका कितनी सादगी पसंद फरमाते। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर है ना
तेरी आजजी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, वो सलाम आजजाना मदनी मदीने वाले। है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना मदनी मदीने वाले। कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह नबी पाक की सादगी का, सब्र व कनात का हमें सदका अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन किन गज़वात में फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाज़रीन। एक जंग के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर आज आपको और भी पता चलेगा कि वो कौन कौन से गज़वात थे जिसपे फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हुनैन में। जी जनाब, सिर्फ ग़ज़वा बदर में नहीं, सुभान अल्लाह, मेरे आका की शान देखें कि नबी पाक की बरकत से ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में और ग़ज़वा हुनैन में फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा तो अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा, ईंट उसके सराहने थी, तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को इतनी आजमाइश में क्यों रखता है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हम जिसकी तरह मुतवज्जे होते हैं दुनिया को हर तरह उससे दूर कर देते हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक के नेक बंदों पर आजमाइशें आती हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए और आजमाइश आए तो वो सब्र करके अल्लाह की बारगाह में और उनका मकाम बढ़ा दिया जाता है। तो जब कभी आजमाइश आए नाजरीन, शिकवा नहीं करना है, बल्कि ये समझ लें कि या तो ये गुनाहों को मिटाने आई है या दर्जे बुलंद करने आई है, तो सब्र के साथ उसको फेस करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत अदन किन के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जन्नत आदन उन लोगों के लिए है कि जो गुनाह का इरादा तो करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को याद करके उस गुनाह से बाज रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हया करते हैं। क्या बात है। गुनाह करने का जी भी चाहे मगर रब याद आ जाए। खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह से हया करके गुनाहों से बचने वालों के लिए ये जन्नत अदन है। अल्लाह करे अकेले में जब गुनाह करने का जी चाहे तो हमें भी ये ख्याल आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो रब देख रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा प्यारा सवाल है नाजरीन और बड़े तारीखी वाक़ई की तरफ इशारा है। शायद बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं सुना होगा कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके लश्कर के लिए जो मछली दरिया से आई थी वो कितनी बड़ी थी? नाज़रीन, दुनिया में बड़ी बड़ी मछलियों के बारे में आपने सुना होगा, कोई पिक्चर भी देखी होगी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में सहाबा किराम एक सफ़र पर गए, एक मछली से उनका सामना हुआ, वो कितनी बड़ी थी? आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जो मछली आई वो इस कदर बड़ी थी कि एक घोड़े सवार उसकी हड्डी के नीचे से अपना घोड़ा लेकर गुजर जाए और 300 अफराद 15 दिन तक खाना खाएं फिर भी वो ख़त्म ना हुई। ये मछली इतनी बड़ी थी नाजरीन कि उसकी एक हड्डी के अंदर इतना बड़ा आर्च बन जाता था, ये समझे मेहराब बनती थी कि घुड़सवार घोड़े समेत उसके नीचे से गुजर सके। और 15 दिन तक 300 अफराद ने उस मछली का गोश्त खाया मगर फिर भी वो मछली ख़त्म ना हुई। तो जनाब ये अल्लाह की शान है कि समुंदर में भी इतनी बड़ी बड़ी मखलूक हैं। अब तो साइंस भी कहती है कि जनाब ऐसी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ हैं जो न जाने कितने टन वजनी होती हैं। तो सहाबा किराम के लिए गोया ये मदद के तौर पर आई थी, क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, समुंदरी सफ़र था और समुद्र के किनारे वो लोग मौजूद थे। और फिर उसके बाद ये मछली मिली और उसके बाद उन्होंने खाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाज़रीन 3 सवाल हो गए हैं, दोनों टीमों की तैयारी आपके सामने है, तो जनाब कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अब एक ऐसा सवाल करेंगे जो इनके सिलेबस से हटकर है, इनको इसका सिलेबस नहीं दिया गया था। सवाल यह है कि ईद उल अजहा की नमाज पहली मरतबा किस सिने हिजरे में हुई? अगर आप बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन मांगेंगे तो मैं 3 ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। किस सने हिजरी में ईद उल अजहा की पहली नमाज हुई? आपके पास 8 सेकंड हैं।
चाहें तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी। जी दोबारा आपको 25 सेकंड मिल गए हैं ऑप्शंस के बाद। 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी। दो हिजरी। आपका जवाब है 2 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर हासिल किया है। कुछ सांस में सांस आई है भावलपुर वालों की, बारी टंडो आदम वालों की है। सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? आप साल पहले बताएंगे विदाउट ऑप्शन तो 2 नंबर मिल जाएंगे, चाहेंगे तो हम आपको ऑप्शंस दे देंगे। कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना ऑप्शन लीजिएगा। सूद कब हराम हुआ? जल्दी कीजिए, 2 सेकंड है। 9 हिजरी। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 1 हिजरी, 5 हिजरी और 9 हिजरी। और अगर इस बगैर ऑप्शन के जवाब की वजह से इनसे गलती हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, मगर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये सवाल होगा भावलपुर वालों से। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? अब ये मैं ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि ये दोनों सवाल जो अगले हैं ये विद ऑप्शन हैं। सही इब्ने खुजैमा, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल और सही मुस्लिम, इन 3 में से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? सही मुस्लिम। सही मुस्लिम शामिल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल टंडो आदम वालों से है। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? तीनों ऑप्शन दूंगा, 30, 15 या 21। 30 वाजिबात। 30 वाजिबात लिखे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर का फर्क पड़ गया है नाजरीन, और आगे जाकर ये नंबर कवर करना होगा भावलपुर वालों ने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। अब जनाब यहां तो सवालात पूरे हो गए हैं, अब बारी हाजरीन की है। उनसे सवाल होंगे और उनको जवाबात देने हैं और उनको तहाइफ मिलेंगे। जी आतिफ भाई। सवाल बड़ा खूबसूरत है और है भी थोड़ा मुश्किल बज़ाहिर। अच्छा, सवाल ये है कि इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। बड़ा मशहूर इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम। हाय ये जब दावत इस्लामी में हम नए आए थे ना, तब अमीर अहले सुन्नत के बयान से हमें पता चल गया था उन खातून का नाम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईमुल्लाह तारी बोल रहा हूँ और इसका सवाल का जवाब है हज़रत सुमैया। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये खानदान ने नाजरीन बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इनकी आले यासिर कहलाती थी, उसमें हजरत अम्मार भी थे। बड़ी तकलीफ़ों में इनके पूरे घराने को रखा गया। ईमान कबूल करने की बहुत सजाएं दी गई और आप इस्लाम की पहली शहीद खातून हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया इन्होंने। इंशाल्लाह इनको किताब भी सहाबियात व सालिहात के आला औसाफ, वाह भाई वाह, ये किताब दे रहे हैं जिनमें सहाबियात का इश्क रसूल है, दीन के लिए सहाबियात की कुर्बानियाँ और नसीहत अमोज़ बातें, बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। अगर कोई मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहे तो 460 रुपए में से तलब भी कर सकता है। माशाल्लाह ये किताब हासिल करने वाली है, हर इस्लामी बहन को पढ़नी चाहिए और माशाल्लाह ये तोहफा इन्हें मिला। एक और सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब का नाम बताइए। जी बाबा फरीद और दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह के पीर साहब का नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना। हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह। जी हाँ, सैयदना बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब इनको भी तोहफा पेश कर दें। इनको क्या तोहफा दे रहे हैं? इनको मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब है और ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाबत मुश्तमिल दिलचस्प मालूमात, ये किताब तोहफे में दे रहे हैं और तकरीबन 92 मौज़ूआत पर इसके अंदर जो है वो सवाल जवाब मौजूद है। इल्म दीन का ख़जाना है। ये मदारिस वाले, स्कूल कॉलेजेस वाले, ट्यूशन सेंटर्स वाले इस किताब को हासिल करें। अपने अपने इंस्टीट्यूट में आप इसके ज़रिए मुकाबला ज़हनी आजमाइश भी करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर ये शौक़ पैदा कर सकते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग बुक ऐसे हासिल करें। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या कहता है।
जनाब 10 नंबर हैं टंडो आदम के, 9 नंबर हैं भावलपुर के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बड़ा ही कमाल का सेगमेंट है जो इश्क रसूल के दिल में जो तार है उसको छेड़ता है, क्योंकि इसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। चले जनाब, भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल और इसमें इंशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे ये अशार हमें सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह इन अशार की जो शरह है उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। पहला सवाल भावलपुर से है, फकत ये आरज़ू है नज़अ में मरकद में महशर में, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को। न भूले और न भूलोगे क़यामत तक गुलामों को, न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत हाय का। हाय सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा और फिर जब जन्नत में लोग जाएंगे वहां पर जन्नतियों की गोया दावत होगी, जन्नती दस्तरखान लगेंगे। आला हजरत ने कितनी प्यारी इल्तिजा की है कि गदा भी यानी मैं भी मुंतजिर हूं जो जन्नत में नेकों की दावत होगी। अल्लाह उस दावत में हमें भी शामिल फरमा ले। आइए मिलकर पढ़ते हैं। गदा भी मुंतजिर है में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिल खैर से लाए लाए, खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का। अगला शेर, यही है असले आलम मादाए ईजादे खलकत का। यही है असल आलम मादा इजाद खलकत का, यहाँ वादत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। यहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चर्चे हूरों में हैं देखो तो जरा बाले बुराक। चर्चे हुरों में हैं देखो तो ज़रा बाल बुराक, सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में। हम सियाह कानों पे यारब तपिश महशर में, जब साए अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जरा इस कलाम को समझिएगा नाजरीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास कैसा अल्फाज का ज़ख़ीरा था, तख़य्युल और इमेजिनेशन का आलम क्या है। ये पूरा कलाम ही नबी पाक के मुबारक गेसू, नबी पाक की मुबारक जो जुल्फ़े हैं उसके ऊपर कलाम लिखा। और कई मकामात पर आला हजरत ने नबी पाक के मुबारक गेसुओं को यानी जुल्फ़ मुबारक को अब्रे करम यानी वो काली घटाओं वाले बादल जो साया भी करते हैं और जो रहमत की बारिश भी बरसाते हैं। तो आला हजरत कहते हैं जब क़यामत का दिन होगा, सूरज तपिश पर होगा, लोग प्यास से परेशान होंगे, अल्लाह उस दिन नबी पाक के जो अब्रे करम वाले गेसू हैं उनका साया हम पर कर देना, उनकी बरकतें यानी नबी पाक के हम करीब पहुंच जाएं, आका के परचम तले जमा हो जाएं तो कयामत की गर्मी से बच जाएंगे। क्या खूबसूरत शेर है, मिलकर पढ़ते हैं। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, सा
साया अफगन हों तेरे प्यारे के प्यारे। चमन तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा। चमन तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। कमाल की बात की आला हजरत ने, जरा शेर को समझिएगा। चमन तैबा यानी मदीने को एक बाग की मिसाल दी है, और मुर्गे सिदरा, मुर्ग कहते हैं, एक तो हमारा परिंदा मुर्ग होता है, यहाँ मुर्ग से मुराद है, जैसे मुर्ग आपने देखा होगा अजान देता है, तो मुर्गे सिदरा यानी नबी पाक की शान बयान करने वाला एक ऐसा परिंदा है जो सिदरा से आता है। सिदरतुल मुंतहा पे कौन रहते हैं? हजरत जिब्रील रहते हैं। और मदीना मुनव्वरा बार बार जिब्रील अमीन आते रहे, और मदीना तो वो शहर है जहाँ नबी पाक फरमाते हैं ना कि नबी पाक के मज़ार मुनव्वर पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। तो चमने तैबा है वो बाग जहां मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं। जब तक आका मदीने में जलवा फरमा रहे, हयात ज़ाहिरी में वो बार बार वही लेकर आते, नबी पाक के कदमों की हाजिरी देते, आका के दर की बुलबुल बन के हजरत जिब्रील हाजिरी देते रहे। अल्लाह करीम नबी पाक के उस शहर मुक़द्दस की जहां इस तरह जिब्रील अमीन हाजिरी देते रहे, जहां आज भी फरिश्ते बाअदब हाजिरी देते हैं, हम सबको भी हाजिरी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाए महरूमी ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बस, रह गया हमरा ज़व्वारे मदीना हो, रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साइलों दामन सखी का थाम लो। कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। है नबी पाक के दामन को थाम लेना है। आका की सखावत का आलम यह है कि वो अपने दर से किसी को खाली नहीं लौटाते। साइलों दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साइलों दामन सखी का थाम लो, साइलों दामन सखी का थाम लो, कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, हो जाएगा। बड़ा कमाल का कलाम है और बड़ा यूनिक कलाम है। चले इसी कलाम का एक शेर हम यहाँ अपने इस्लामी भाई से पूछते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल इस कलाम का शेर है, जान दे दो वादे दीदार पर। गौर कीजिए क्या खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि हम जब मरेंगे ना, आशिक रसूल तो इस उम्मीद पे जीता है कि जब इंतकाल होगा तो नबी पाक का दीदार होगा ना कब्र में, तो जान दे दो वादे दीदार पर। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गुलाम इलियास अत्तारी है। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ये सौदा महंगा नहीं है। अगर ईमान और आफियत के साथ इश्क रसूल के आलम में सुन्नतों पर अमल करते हुए दुनिया से भी जाएंगे ना, तो घाटे का सौदा नहीं है। आशिक रसूल तो इंतजार में जी रहा है कि कब्र में जाऊंगा तो आका का दीदार नसीब होगा। जान दे दो वादा दीदार, जान दे दो वादा दीदार पर, जान दे दो वादा दीदार पर, दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। क्या तोहफा दे रहे हैं इन्हें? चला इनका दाम भी नकद इनको दे रहे हैं जी। काउंटर तस्बीह और
इतर शरीफ। आपको पता है तस्बीह कहाँ की है? ये वही बगदाद शरीफ वाली है। अच्छा माशाल्लाह, चलें तोहफा दें। चलें एक और शेर सुनते हैं आपसे। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौस। अपना नाम भी बताएंगे, कहाँ से आए बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हूद रज़ा तारी, माशाल्लाह, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल इक़्तिसाद के अंदर। माशाल्लाह। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा। आप ये भी बताएं कि तखस्सुस तो आप आलमी मदनी मरकज़ में कर रहे हैं, दरस निज़ामी आपने कहाँ से किया? दरस निज़ामी मैंने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से किया। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये भी बड़ी कमाल की बात है कि दावत इस्लामी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं अमेरिका से दरस निज़ामी करने वाले, साउथ अफ्रीका से दरस निज़ामी करने वाले इस्लामी भाई। अब तखस्सुस करने, तखस्सुस गोया समझे कि आगे जाके ये मुफ्ती बनने का कोर्स होता है और फिर उसके बाद ये दारुल इफ्ता की तरफ जाएंगे। ये कमाल है कि दुनिया भर के लोग इन ममालिक में जाकर दुनिया की रंगीनियाँ देखने जाते हैं और ये बच्चे यंगस्टर हैं। यही तो दिन होते हैं जिसमें शैतान लोगों को गुनाहों की तरफ ले जाता है। मगर आपकी दावत इस्लामी की और माशाल्लाह इल्म दीन की एक ऐसी खुशबू अमीर अहले सुन्नत ने फैलाई है कि ये बच्चे अपने वतन को छोड़कर ऑल द वे ट्रैवल करके पाकिस्तान में आकर अब मुफ्ती बनने के लिए आए हैं। दुआ करें अल्लाह इन सब बच्चों को आलिम बाअमल बनाए, दीन का अजीम मुबल्लिग बनाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और क्या खूबसूरत आला हजरत का शेर है कि जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, बहुत खूबसूरत सेगमेंट चल रहे हैं और मुकाबला चल रहा है। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मगर उससे पहले एक खूबसूरत सी कॉल भी ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हंजला रज़ा अत्तारी है। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, हम सब घर वालों को ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम सब इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी वालिदा की तबीयत के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपकी वालदा को शिफाए कामिला अता फरमाए, उनका साया सलामत रखे। बल्कि जितने नाजरीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, जो भी उनमें बीमार हैं, उनके घर वालों में बीमार हैं, अल्लाह करीम सबको शिफा अता फरमाए। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मजहर कयूम अत्तारी है और मैं मियावाली से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब अंकल से मेरा ये सवाल है कि जैसे ज़हनी आजमाइश आने पर हमें खुशी होती है, उसी तरह आपको भी खुशी होती है या नहीं? और मैं आज भावलपुर टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। माँ बाप और मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए। अल्लाह आपकी, आपके वालिदैन की, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन हम सबको खुशी होती है। मदनी चैनल का ये एक सिलसिला है जिसको लोग पसंद करते हैं। ज़ाहिर मुसलमान जिसको देखकर खुश होंगे तो किसको खुशी नहीं होगी। बस आप अपनी दुआओं से नवाजते रहें और दुआ भी करें कि अल्लाह इस सिलसिले को कबूल भी फरमाए। एक और कॉल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी मैं हाँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, मैं हाँ अहमद यान अत्तारी, असल हुए भिरात तो शरीफ ख्वाजा शाह सुलेमान पीर पठान दी धरती जो अलमेदे पैसे असाज टीम भावलपुर दनाली से, टीम भावलपुर बेस्ट ऑफ लक, ज़हनी आज़माइश जिंदाबाद। चलें जनाब, सराइकी में भी कॉल आ गई है। अब देखते हैं आगे मुकाबला कैसे चलता है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट है। पहले स्कोर बोर्ड दिखा दें, फिर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जनाब 20 नंबर है टंडो आदम के, 19 नंबर है भावलपुर के। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मज़ीद मालूमात में इजाफा हो, अकीदे की पुख्तगी हासिल हो, बच्चों के जहनों में यह अकीदा और रासिख हो, इस नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सेगमेंट लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को लेकर आगे चलें, आइए मिलकर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से जो अता करदा नारे हैं, कुछ नारे हम लगाते हैं। मुहम्मदे मुस्तफ़ा, अहमदे मुजतबा, आमिना का लाडला, शाहे हर दो सरा, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का,
अकीदा गौस पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल करेंगे भावलपुर वालों से, क्या अकीदा खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। जी हाँ, अकीदा ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से है। जो बंदा इस अकीदे का इनकार करे या इसमें ज़र्रा बराबर शक करे, वो बंदा काफिर व मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। जी जनाब, ये बिल्कुल जो समझिए ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सबसे आखिरी नबी मानना ज़रूरियात दीन में से है। जो इसका इनकार करे, बल्कि इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करे, तो वो इस्लाम से खारिज, काफिर और मुर्तद हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अकीदा कितना ज़रूरी है और इसको मजबूती से हमें किस तरह थामना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खत्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। दिल का रोशन करे, आप गिना चलो, इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। खत्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। कुरान पाक की एक सरी साफ आयत और अहादीस तवातुर इन सब से साबित है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी नबी हैं। और जो खत्म नबूवत का इनकार करे, खत्म नबूवत का मुनकर, वो खत्म नबूवत का मुनकर और इस्लाम और दायरे इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से खारिज है। जनाब, कुरान मजीद की सरी यानी साफ आयत भी मौजूद है और अहादीस तवातुर हद तक पहुंची हुई, इस हद तक पहुंची हुई हैं, इन सब से साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, वो खत्म नबूवत का मुनकिर, काफिर और इस्लाम से खारिज है। ये इसका हुक्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबी आने का दावा करे, क्या उससे दलील मांगी जा सकती है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी मुद्दई नबूवत का दावा करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी, बल्कि उसके अकीदे का ही रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमा दिया है कि ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी जनाब, कोई दलील नहीं मांगी जाएगी, इसमें जर्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम फरमा चुके ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो जनाब कोई किसी किस्म की दलील नहीं मांगी जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, क्या नबूवत का कोई झूठा दावा करे माअल्लाह, तो उससे मौजज़ा तलब किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा नंबर 134 से अर्ज़ और इरशाद सुनिए। अर्ज़, क्या झूठे मुद्दई नबूवत से मौज़ा तलब किया जा सकता है? इरशाद, झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का दावा करने वाले से अगर इसलिए मौज़ा तलब किया कि उसका इज़्ज़ यानी नाकामी व हार ज़ाहिर हो तो कोई हरज नहीं, और अगर तहकीक के लिए मौज़ा ज़ाहिर किया कि मतलब तलब किया मौज़ा कि ये मौज़ा दिखा भी सकता है या नहीं, तो वो फ़ौरन काफिर हो जाएगा। बड़ा नाजुक मसला है नाज़रीन। आला हज़रत से सवाल हुआ कि क्या झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का नबी होने के झूठा दावा करने वाले से कोई मौजज़ा मांग सकता है, मौजज़ा तलब कर सकता है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि अगर मुद्दई नबूवत यानी जो नबी होने का दावा कर रहा है, इस ख्याल से उससे मौजज़ा मांगा दलील के तौर पर कि वो नाकाम हो जाएगा, वो तो हार जाएगा, उसकी हार साबित हो जाएगी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसलिए मौजज़ा तलब किया कि ये मौजज़ा दिखा भी सकता है कि नहीं, इस तहकीक करते हैं, तो फरमाया ये जो तलब करने वाला है यही काफिर हो जाएगा। क्योंकि उसके जहन में ख्याल कैसे आया, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, ला नबिया बादी उनका इरशाद आ गया, तो इस बारे में किसी किस्म की कहते हैं ना फाइनल ये हमारा वर्डिक्ट है कि नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और यही हमारा मजबूत अकीदा होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इस अकीदे पर मजीद मजबूती अता फरमाए। जनाब एक सवाल से ये साहब मजीद कोई हमारे नाजरीन से करेंगे ताकि तोहफा उन्हें पहुंचाएं। सवाल बड़ा खूबसूरत है कि फ़ातिह मिस्र किन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है? फ़ातिह मिस्र
किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है? दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाहुल करीम मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब करामात सहाबा ये इंशाअल्लाह तोहफे में पेश करेंगे, जिसमें तकरीबन 100 सहाबा इकराम रिदवान की करामात मुश्तमिल ये किताब है, और भी बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। ये किताब इंशाअल्लाह हम आज तोहफे में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उबैद रज़ा बिन आबिद अत्तारी ठट्ठा से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल शायद ये समझे नहीं, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी सवाल दोबारा रिपीट करें। सवाल ये है कि फातिह मिस्र किन सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है? चलें, फातिह सहाबी की बात हो रही है ना बेटा, आप तो नबी का नाम ले रहे हैं। फातिह मिस्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला। जी हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। अच्छा, एक वजाहत करनी है, इनको तोहफा पेश करें। कौन क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? इन्हें करामात सहाबा ये किताब तोहफे में दे रहे हैं, जिसमें तकरीबन 100 सहाबा इकराम की करामात हैं और बहुत सारे मदनी फूल हैं। माशाल्लाह। एक सवाल थोड़ी देर पहले हुआ था कि सूद कब हराम हुआ या उसकी हुर्मत कब नाजिल हुई, तो सही जवाब दिया गया 9 सने हिजरी, और यही गालिबन इनके निसाब में भी था। लेकिन किबला अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती अली असगर साहब को, जिन्होंने माशाल्लाह इस मौजू पर बड़ी तहकीक भी की है, उनकी किताब भी इस मौजू पर है और तशरीफ़ ला रही है। तो इस मौजू पर जो तहकीक में कुछ इख्तलाफ भी है, यानी ये भी एक कॉल मिलता है, मगर मुफ्ती साहब का फरमाना ये है कि जंग ओहद के मौके पर भी सूद हराम था। तो अब ये दुरुस्त है, लेकिन चूंकि अब इनको निसाब ये दिया गया था तो इसलिए हम इनके नंबर नहीं काट रहे, लेकिन ये शरई हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब मुफ्ती साहब ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है। तो दुरुस्त जवाब ये है इसका कि जंग ओहद के मौके पर सूद हराम था, और उम्मीद है कि ये मैसेज भी हमारा पहुंच गया होगा, मगर हम टीम का नंबर डिडक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें एक अलग किताब से उन्होंने हवाला लिया था। अल्लाह करीम हमें सूद की हरामकारी से महफूज फरमाए, सूद की नहुसत से महफूज फरमाए, और इस काम से हमें हमेशा बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा, सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी शागिर्दो सरा, सबसे आखिरी नबी है अकीदाए रज़ा, सबसे आखिरी नबी अत्तार का, सबसे आखिरी नबी है ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, नूर मुजस्सम तुझ जैसा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और वो सेगमेंट बहुत दिलचस्प है, हमारे यहाँ बोर्ड एक्टिविटी है और नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है,
नाज़रीन, नामों के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी लोगों में रहती है, बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है। नित नए नाम रखने हैं, यूनिक नाम रखने हैं, पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, और उस चक्कर में अजीबो गरीब भी नाम रख लेते हैं। हालांकि नाम वो रखने चाहिए जो अच्छे हों, जिसके माना अच्छे हों, निस्बतें अच्छी हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब किसी आमिल यानी ज़कात और उशर वगैरह करने वाले को ज़िम्मेदार बनाकर भेजते तो उसका नाम पूछते। अगर उसका नाम नबी पाक को पसंद आता तो आप खुश हो जाते, और वो खुशी भी चेहरे से ज़ाहिर होती थी। और अगर उसका नाम नापसंद होता तो नापसंदीदगी आपके चेहरे पर देखी जा सकती। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपनी औलाद के नाम अच्छे रखो। इस नाम का असर जिसका नाम होता है उस पर पड़ता है। बुरे नाम वाले को लोग अपने पास नहीं बैठने देते, अच्छे नाम वाले के काम भी इंशाअल्लाह अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छे नाम रखने चाहिए, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नामों को अभी हम पेश करेंगे आपके सामने। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं। 1 मिनट का टाइम होगा और आप दोनों के बॉक्सेस अलग हैं, तो दोनों ही एक साथ इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चले भाई 2 मिनट का टाइम हमारी मजलिस दे रही है। आ जाएं, अपने अपने बोर्ड पर आ जाएं और बोर्ड को ज़रा सीधा कीजिए, और 2 मिनट के अंदर आपने एक दूसरे के बोर्ड को नहीं देखना है, अपने बोर्ड पर तवज्जो देनी है। और यहाँ पर इस बोर्ड को भी ठीक कीजिए, फिर हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। जी, यहाँ भी आ जाएं, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अगर आपने ये 5 नामों के माना भी और निस्बत भी, मैं नाम भी बता देता हूँ नाज़रीन, ज़रा बोर्ड की तरफ कैमरा कीजिए। सालेह, दानियाल, सुलेमान, नौफल और मुनकदिर, इनके माना भी बताने हैं और इसकी निस्बत भी बतानी है। और यहाँ पर सारिया, आलिया, सैफ, हातिम और फाजिल, आपको नाम भी देखें नाज़रीन, नए नए मिलते जाएंगे। जब आपको इसका माना पता चलेगा, आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। जी, शुरू कीजिए, 2 मिनट हैं। सही नाम लगाइए और सही निस्बत लगाइए, आराम आराम से। जनाब, नाम लगते जा रहे हैं, अब देखें सही लगते हैं या गलत लगते हैं। सुभान अल्लाह। हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है किस कदर सुहाना सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और चेक कर लें। कदमों में मौत दे दे मुस्तफा के कदमों में मौत। 15 सेकंड रह गए हैं। पहली टीम ने तो कर दिया है, हमने ये पहले और आखिर वाला नंबर नहीं रखे थे। आप 11 सेकंड में कर लें तो इंशाअल्लाह अभी 7 सेकंड है आपके पास। और हमने कोशिश ये की थी कि वही 10 स्लाइडें रखेंगे आपके पास जो वहाँ लगनी है। टाइम आपका अब ख़त्म हो गया है। अब हम पहले यहाँ चलते हैं। हो सकता है इन्होंने लगा तो सारे दिए हैं मगर ठीक लगाए हैं कि नहीं, ज़रा आप इधर आ जाएं। ठीक है, पहला नाम है सालेह, जिसके माना बनते हैं नेक बा अमल, और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी है। सुभान अल्लाह। तो ये वाली लाइन तो इनकी दुरुस्त हो गई है, ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। दानियाल, अच्छा दानियाल नाम कई बार सुना होगा, माना नहीं पता होगा। माना इसका बनता है फैसला इलाही, और ये भी अल्लाह के नबी हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, सुलेमान, ये कई बार नाम सुना, अल्लाह के नबी का नाम है। माना शायद हमें नहीं पता होगा। इसके माना है बेऐब शख्स, और ये हज़रत सुलेमान से निस्बत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नौफल, हाँ, इसके माना क्या बनते हैं? इसके माना है फैयाज, सखी, दरिया दिल, और ये सहाबी रसूल का नाम है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मुनकदिर, झपटने वाला, इसका माना बनता है, और जी हाँ, ये भी सहाबी रसूल का नाम है। अब देखिए, यूनिक नाम आपको चाहिए
यानी झपटने वाला, वार करने वाला इसके माना बनता है। तो अब देखिए नाम भी प्यारे हैं, निस्बतें भी प्यारी हैं, माना भी प्यारे हैं, तो ये नाम रखे जा सकते हैं। और माशाल्लाह ये भावलपुर वालों ने पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी जनाब, अब चलते हैं यहाँ पर। सारिया, रात में चलने वाली, इसका माना बनता है। और ये हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली का नाम था। आलिया, हर चीज का बुलंद हिस्सा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला की ये पोती का नाम है। सैफ, ये तलवार को कहते हैं और नबी पाक के सहाबी थे, ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हातिम, और इसका जो माना बनता है हातिम का फैसला करने वाला, और सुभान अल्लाह ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम भी है। तो ये मौजूद थी स्लाइड, शायद बेचारे जल्दी में नहीं ढूंढ सके। और फाजिल, अच्छा फाजिल है कामिल इल्म वाला, कसीर फजीलत वाला, ये इसका माना है। और कामिल जो है इसकी जो निस्बत बनती है, ये जो निस्बत है ये किसके साथ है, बल्कि सॉरी फाजिल की निस्बत जो बनती है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये भी मुबारक नाम है। तो 10 में से इन्होंने 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, तो इनको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी कोशिश की है, 1 नंबर का सिर्फ फ़र्क पड़ा है। तो इससे इंशाअल्लाह मज़ीद अवेयरनेस पैदा होगी कि हमें अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए। अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह मिलकर नातख़्वानी भी करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह नेक आमाल का जायज़ा भी लेंगे। और अब ये मामला और इंटरेस्टिंग हो गया है कि जो टीम थोड़ी सी पीछे थी वो बराबर हो गई है, और दोनों टीमों के अब 28-28 नंबर हो गए। आ जाए तशरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन इस्लामी भाइयों के पास नेक अमाल के रसाइल हैं, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसके ज़रिए भी अपने अमाल का जायज़ा लिया जा सकता है। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमाअत से 2 घंटे घर में पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, 1 मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायीद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह हम सबको इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे
دل گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے غم لگائیں گے آج نہیں تو کل سگی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کے وہ تیرے گئے تو ہوئے غم تیرے سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے تو صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد کا میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت پیرائے میں الگ الگ قسم کے آپ نے کلام لکھے ہیں اس کلام میں جہاں شروع میں نبی پاک کی شان بیان کی ہے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے نبی پاک سے اپنی نسبت کی بات کی ہے اور پھر زاہد عبادت گزار کو کہہ رہے ہیں کہ زاہد میں ان کا گناہگار ہوں اور وہ میرے شافع ہیں ٹھیک ہے تم تو بڑے عبادت گزار ہو میں تو گناہگار ہوں مگر اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے آقا تو گناہگاروں کے بھی آقا ہے نا وہ میری بھی شفاعت فرمائیں گے اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت اس کلام کو ایک اور طرف لے جاتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہو اور مجھے سوال جواب میں مشکل ہو میں ہوں تو گناہگار میرے پاس تو جواب ہے نہیں تو اس وقت میرے ساتھ کیا کیا ہو اب میری تمنا اس دن کے لیے کیا ہے قیامت کی امیجنیشنز ہیں قیامت کے دن اگر فرشتے مجھے پکڑ لیں یا مجھ سے سوال جواب کریں تو میری تمنا کیا ہے کہ اس دن کیا کیا میرے ساتھ ہو تو اگر اب تصور جماتے جائیں گے اس کلام میں آگے جس طرح اشعار بڑھتے جائیں گے کہ قیامت کے دن جب فرشتے گناہگار کو روکیں گے سوال جواب کریں گے وہ پریشان بھی ہوگا اور پھر جب نبی پاک کی شفاعت ہوگی اور آقا آ کر اسے چھڑائیں گے تو اس گناہگار کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اگر آپ اس سفر میں ان خیالات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے چلتے جائیں گے تو اس کلام کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا شفاعت مصطفیٰ پر مزید یقین بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ اس امید پر یہ کلام سنتے ہیں کہ نبی پاک اسی طرح قیامت کے دن ہمیں بخشوائیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے تو کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے اور آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی گئی اس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے جسے کہتا اللہ خبر لیجئے میری بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے اور یوں ملائک کرے معروض آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے اور سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش کر رہا ہے کہ خدا سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس کے شگار میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں آقا آ جائیں خوف گئے کھٹکا کیا ہے سن کے یہ
یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئی ہوں ملائک کو وہ ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ گر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگو آیا میرا غامی 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 مسکراتے ہم مسیروں کی طرف پھر منیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے پائے کوبا پل سے گزرے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی بتا دو بس ان کے آنے ہی نہیں دیر گئے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئے ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نگی حد لیکن پر تو ہے ان کا تو غسل تیری گئے جنت تیری لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی اتنا سبب ہے انعقاد بزم میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا دگے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم وہ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و توا تم ہو ہمیں امید ہے روز قیامت کی رحمت سے فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی نہ جائیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی محشر گئے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کی ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگو آیا میرا غامی
خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی گئے شان سب سے نرالی لو وہ آیا میرا غامی لو وہ آیا میرا غامی ستمکاروں جفاکاروں سیہکاروں خطاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ جگہ تم گولو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی تمکارو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ ازبدہ تم گولو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا میرے داتا کی سواری سرگشرائے گئے نا امیدوں تمہیں مجدہ کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے لیے لائی ہے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی ناگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا کہیں گے اور نبی اس غبو لا غیری پر میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو آیا میرا حامی میرا خالے آ گئی جان بے جامے یہ آنا کیا جے دامن دس میں چھپانے سر اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم حکم والا کی تعمیل ہو سغرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور چشم بدور کو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رغم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے تو اے رضا جانے انا دل
लेकिन झलक है ये उजाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हज़रत की, कमाल करते हैं आला हज़रत। अल्लाह करे कि बस क़यामत के दिन इसी तरह नबी पाक हमें भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर अपनी शफात के दामन में छुपाकर अपने साथ ही जन्नत में ले जाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्लाम अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ गुज़ार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आपको, आपकी आल टीम को, तमाम इस्लामी भाई जो इसमें तामुल करते हैं, शिरकत करते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं, तमाम टीमों को अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए और हम सबको मदीना पाक की बाअदब बार बार हाज़री नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना टंडो आदम से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह हाजी साहब आपका शो बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए और दावत इस्लामी में मेरे रहने की इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। इतने इंतजार के बाद दोबारा से ज़हनी आजमाइश सीजन 16 आ चुका है। माशा अल्लाह, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर वाले भी मेरे साथ देखते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब आप ज़हनी आजमाइश के किसी भी मैच में जाते हैं तो क्या उससे पहले आप अपनी होस्टिंग की तैयारी करते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़हनी आजमाइश के मुकाबले होते हैं, ज़ाहिर आप मुकाबला कहते कहते कुछ और कह गए, और अलबत्ता तैयारी की तो खैर हाजत नहीं रहती। हाँ, मैं सवालात ज़रूर देखता हूँ प्रोग्राम से पहले, कुछ देर पहले आकर, और अब मुझे कुछ तैयारी कुछ दिनों बाद शुरू करनी पड़ेगी जब हम उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में कलाम करना होता है, तो उसमें यकीनन कुछ देर देनी पड़ती है। तो अब दुआ करें कि अल्लाह पाक इन काविशों को कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें, एक बार हमें स्कोर बोर्ड दिखा दें, फिर इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे चलते हैं। दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, दिल का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल कुशा से ये 28 नंबर टंडो आदम के, 28 नंबर भावलपुर के हैं जनाब। 2 सेगमेंट हैं जो ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल भाई, ये एक मैसेज आया हुआ है कि माशाल्लाह आपके सेगमेंट इस दफ़ा नए हैं, बहुत अच्छे हैं, और पिछले सेगमेंट आप लेंगे जैसे उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग आपने जो पिछली दफ़ा लिए, तो इस दफ़ा आप कौन कौन सी ज़ुबानें नई ऐड करेंगे और ये कब से सेगमेंट शामिल होगा? ये इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि जब ये 16 मुकाबले कंप्लीट हो जाएंगे और जब नॉकआउट राउंड शुरू होगा तब इंशाल्लाह उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लेंगे और मुख्तलिफ ज़बानों में लेंगे। तैयारी उस पर जारी है और इंशाल्लाह वक्त कुछ न्यू ज़बान भी ऐड की है इसमें आपने? ये हमारी मजलिस तय करेगी। अगर कुछ ज़बानें आपने ऐड करवानी है तो अब हमारी मजलिस से रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। आइए, अब ये सेगमेंट जो है हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली भी की है। दोनों टीमों से 3-3 सवाल भी होंगे और हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन से भी इंशाल्लाह कोई जुमला हम दुरुस्त करवाएंगे, तो हाजरीन भी तैयार हो जाए। अब बारी है भावलपुर वालों की। अच्छा, ये भी होगा कि 30 सेकंड होंगे इनके पास। अगर तो ये जुमला बना लेंगे तो ठीक है, वरना हम हाजरीन को भी मौका देंगे। अगर आप सही बना लेंगे तो आपको तोहफा मिल जाएगा। और जनाब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड जो हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे उसी दौरान इन्होंने जुमला दुरुस्त करना होगा। यही 30 सेकंड इनके पास है। नहीं, ठीक है। अब पहला जुमला जो भावलपुर वालों ने दुरुस्त करना है, आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिखाए जाएंगे, आप इससे जुमला दुरुस्त कीजिए विद इन 30 सेकंड्स। जी, इसको बड़ा कर दीजिए। चले जनाब, 30 सेकंड है, गौर कीजिए और जुमला बना लीजिए। या तो आप बना ले या हाजरीन बना लेंगे। नाजरीन, आप भी घर में बैठ के जुमला बनाइए, देखिए आप बना सकते हैं कि नहीं। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तुम में से अफजल शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। कुरान पाक था जी। मफहूम दुरुस्त होगा तो 1 नंबर मिलेगा। लफ्ज पूरे ठीक होने चाहिए। लफ्ज दिखाइए, अब जुमला दिखाइए। कुरान मजीद था। जुमला दुरुस्त करके बताइए क्या है। तुम में सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। लफ्ज ब लफ्ज सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। एक लफ्ज में आपने आगे पीछे किया इसलिए आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। बहरहाल जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। टंडो आदम वालों की बारी है।
जी 30 सेकंड है। आपके पास 30 सेकंड है, सुकून से जवाब दें, जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें कि सारे लफ्ज पूरे आ जाएं। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। दोबारा पढ़े। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। नाज़रीन, ये हदीस पाक भी है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है, प्रॉपर जवाब दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बावलपुर वालों की बारी है। जनाब ये भी हदीस पाक है। लगता है सेकंड अब अगली सिलसिले में कुछ कम करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। फिर एक लफ्ज कम कर दिया आपने। अपने भाई को अब टाइम निकल गया, आप प्रॉपर दोहराया करें। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। लफ्ज भी जो है वो आप भूल गए, तो इसलिए 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। फोटोजेनिक मेमोरी रिक्वायर्ड है कि जो अल्फाज हैं वो सारे जहन में उतारें और फिर जुमला पूरा करें। नबी पाक की हदीस पाक भी है। चले मुस्कुरा तो ले, मुस्कुराना भी सदका है। अदहकल्लाहु सिन्ना का, मुस्कुराते रहा करें। कुछ लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते, बल्कि आप मुस्कुराते हो तो सामने वाले भी मुस्कुराते हैं, माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो मुस्कुराने की आदत डालें। 1 नंबर मिलेगा जनाब भावलपुर वालों को। अब बारी फिर टंडो आदम वालों की है, दिखाइए जनाब। किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो भागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आपसे आगे भागेगी। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आगे भागेगी। जितना दुनिया के पीछे भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अब इन्होंने कहा दुनिया के पीछे जितना भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अल्फाज तो इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए हैं, क्या मफहूम भी पूरा हो जाता है? तो क्या इनको 2 नंबर मिलेंगे? जी, इनको 2 नंबर पूरे दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्योंकि अच्छा, इनका लकीली ये था कि ये हदीस नहीं थी। अगर हदीस होती तो फिर हमें वही अल्फाज को फॉलो करना पड़ता। ये एक बुजुर्ग का कॉल था, तो इनके जनाब नंबर, चूंकि अल्फाज इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए, कोई लफ्ज छोड़ा भी नहीं और मफहूम भी पूरा बयान हो गया, तो जनाब 2 नंबर मिल गए। अब बारी है भावलपुर वालों की, जनाब दिखाइए। हदीस पाक है। किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है, किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक। सबसे बड़ी ज्यादती मुसलमान को बेइज्जत करना है। भावलपुर वालों ने लगता है खाना नहीं खाया है, हर बारी में एक लफ्ज खा गए। जनाब फिर दिखाइए जुमला। सबसे बड़ी ज्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। लफ्ज किसी जो है वो आप माइनस कर गए हैं, तो 1 नंबर फिर कम हो गया जनाब। अब बारी टंडो आदम वालों की है। जुमला दिखाइए जनाब। मशवरा करके जवाब दिया करें, जल्दी ना किया करें। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगीना। जल्दी करें। दुनियादारों के लिए जूता उम्दा इस्तेमाल करे ताकि उनकी निगाह जूते पर ही रहे। ये दुरुस्त नहीं है। उम्दा जूता इस्तेमाल करें ताकि दुनियादारों की निगाह आलिम के जूतों पर रहे। ये उलमा के लिए कहा गया कि आलिम जो है वो अगर हो सके तो उम्दा जूते इस्तेमाल करें ताकि दुनियादार कदमों की तरफ ही नज़र रखें, अदब भी रहेगा, ताज़ीम भी रहेगी और रिस्पेक्टफुल अंदाज रहेगा। ये बड़ी गहरी बात है। बहरहाल तो गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर नंबर करीब आ गए जनाब।
अच्छा बताया, ये मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का कॉल है, माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ों की बड़ी बातें हैं जनाब। तो एक नंबर का अब सिर्फ फर्क रह गया है, इसका मतलब आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल दीजिएगा। हमारे भावलपुर की टीम के हक में भी तमाम दुआएं। जी पहले कॉल दे दे, फिर यहाँ इस्लामी भाइयों से भी जुमला ट्रिक करवाते हैं। जी माशा अल्लाहुल करीम, क्या बात है। हमारे मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब भाई की माशा अल्लाहुल करीम ये हर साल ज़हनी आज़माइश जैसा बहुत प्यारा सिलसिला लेकर तशरीफ़ लाते हैं। तो माशाल्लाह टंडो आदम और भावलपुर की टीम आमने सामने है। मैं भी टंडो आदम का हूँ, तो मैं टंडो आदम की टीम को सपोर्ट करूँगा। अल्लाह पाक शेख भाई को, हमारे ताहिर भाई को और हमारे अब्दुल रहमान भाई को तरक्की और उरूज अता फरमाए, मंजिल तक पहुँचने और मंजिल से सीधा मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे भावलपुर की टीम के हक में भी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। टंडो आदम और भावलपुर के लिए दुआएं आ गई हैं जनाब। अब यहाँ मौजूद हाजरीन से जरा देखते हैं जुमला कौन दुरुस्त करता है। जी जुमला दिखाइए हाजरीन के लिए। 30 सेकंड्स हैं। यहाँ तो कोई तैयार हो नहीं रहा, अभी तैयार हो जाएंगे। इनके कौन से नंबर कटने हैं? चले भाई, ये भी एक बुजुर्ग का कॉल है। अमेरिका से आने वालों को भी इजाज़त है, साउथ अफ्रीका से आने वालों को भी इजाज़त है, पाकिस्तान से आने वालों को, नात खानों को भी इजाज़त है। एक भाई ने तो हाथ उठा लिया है। आगे 30 सेकंड गौर से देख ले, क्योंकि ये चला जाएगा 30 सेकंड के बाद, फिर आपके सिर्फ आप होंगे और आपके जवाबात होंगे। चले। जिसका दर तवज्जो से इल्म हासिल करोगे उतना उरूज, तरक्की उरूज हासिल करेंगे। कुछ करीब है मगर कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं। देखिए कोई और शायद प्रॉपर्ली पूरा बयान कर दें। अभी तो इतना सारा हिंट्स मिल गया, हो सकता है हाँ कोई पहुंच जाए। इनके और कोई कोशिश करेंगे? वन ओनली है ये। चले फिर इन्हीं को तोहफा दे दे। तो कुछ गलतियां हैं इनकी। जिस कदर इल्म में तवज्जो करेंगे उतना ही तरक्की और उरूज हासिल करेंगे। इनको तोहफा दे दे जनाब। चले माशाल्लाह। इन्होंने गलती की है तो ये भी तो कुछ देंगे ना। या 3 दिन काफिला ले ले। तीन दिन काफिला ले लें इंशाल्लाह। तीसरा 12 माह कर रहे हैं। अच्छा क्या बात है, फिर तो वैसे ही दे दो यार इनको। माशाल्लाह आप सबके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब हमारे साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कुछ देर में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी नबी की प्यारी सीरत, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह ने दी जा रही है और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को मुख्तसरन इस किताब के अंदर मुकम्मल बयान करने की कोशिश की गई है। तो 230 रुपये में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। हर मुसलमान की ज़रूरत है, बिलखुसूस नौजवानों को ये पढ़नी चाहिए ताकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जो है उसके पहलू उजागर हो सकें। माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है और इसको सदारती अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह। निगरान शूरा हमारे दरमियान आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लबीब भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा निगरान शूरा की आवाज़ तो हम जी अब्दुल हबीब आवाज़ आ गई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आपके ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जो शुरू हुआ उसकी मुबारकबाद। खैर मुबारक हुजूर। माशाल्लाह आज हमारा दूसरा सिलसिला है। भावलपुर और टंडो आदम की टीमें हैं। आखिरी सेगमेंट होने वाला है, तो उससे पहले आपकी हमने सोचा कि कुछ बरकतें हासिल करें। आज आप मदनी मशवरा फरमा रहे हैं और सुना है काफ़ी अहम इस्लामी भाई आपके सामने मौजूद हैं, तो कुछ मदनी फूल हमें भी अता फरमाएं। दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन को। माशाल्लाह माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सदर है माशाल्लाह। इसमें खारादर भी है और आगरा ताज है, लियारी है, सदर है और क्लिफ्टन और डिफेंस वगैरह ये इलाके ज़िम्मेदारान जो दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान होते दीनी काम करते हैं माशाल्लाह, इनके ताल्लुक से ये हमारा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलसिला है। कल रात भी है, परसों रात को भी है माशाल्लाह। आप ज़हनी आजमाइश करते रहेंगे, हम कुछ और ही करते रहेंगे। तो ये है आप ज़हनी आसाइश करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये इलाके का दीनी काम बढ़ता है। अभी आपके यहाँ जो कुछ भी है, अभी ये जो कुछ भी है सब इलाके के दीनी कामों की बरकत से ही है। बिल्कुल ऐसे। इलाके में जितना दीनी काम बढ़ेगा, 12 दीनी काम बढ़ेंगे, मस्जिदें बनेंगी, नमाजी बढ़ेंगे, इज्तिमात में तादाद बढ़ेगी, नए नए इस्लाम में आपके करीब आएंगे, तो दावत इस्लामी अपने तमाम शोबों में तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। हुजूर मैं ये चाहूँगा, माशाल्लाह आपने कई मदनी फूल इन्हें अता फरमाए होंगे। 3 नवंबर अब कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी नेकी कमाने का हमें मौका मिल रहा है टेलीथॉन के ज़रिए।
جس میں دعوت اسلامی کے اتنے سارے کام. آپ ذرا مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ اس پورے کراچی کے ذمہ داران جمع نہیں ہیں, کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی جمع ہیں. تو آپ سوچیں کہ پورے کراچی کے ذمہ داران, صرف ذمہ داران کو جمع کرنے کے لیے کتنی بڑی جگہ درکار ہوگی. وہ دعوت اسلامی جو اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے, جس کے ہزاروں مدارس, جامعات, پھر مساجد کی تعمیر, پھر یہ ہمارا خود مدنی چینل جس کے ذریعے آپ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, یہ سب دعوت اسلامی کی کاوشیں ہیں اور اس پر یقیناً کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہیں. 3 نومبر کو حضور جو ٹیلی تھون آ رہی ہے اس پر ہم سب کی کچھ تربیت فرمائیں. ہے. اب آپ ناظرین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جی, میں یہاں پر اپنے حاضرین ایک ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران کے ساتھ ہوں. حاجی شاہد اپنے کام میں مصروف ہیں, حاجی یعفور لاہور کے مصروف ہوں گے, حاجی وقار المدینہ پنڈی اسلام آباد و کشمیر میں مصروف ہوں گے, تو حاجی اسلام پنجاب میں, تو کوئی سندھ میں, تو کوئی حاجی امین ہمارے وہ کی افریقہ میں ہوں گے, تو یوں قاری ایاز فارسٹ میں اپنے مصروف ہے. تو یوں اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو دعوت اسلامی کے سینکڑوں اسلامی بھائی جو بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے اپنے دینی کاموں میں مصروف ہیں. تو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز تو چل ہی رہی ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور اب وہ جہاں بھی ہیں وہاں کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھے, وہاں مساجد بنے. ہم کئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہیں, اور لوگ پریشان ہیں. وہاں قرآن پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں ہے, وہاں ان کے بھائی امام نہیں ہے, مبلغ نہیں ہے, بہت سارے ان کی دینی ضرورت ہیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی جو ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے اس کو میکسیمم پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہماری باقاعدہ یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے پیچھے جو آپ کو ایک ورڈ ملے گا وہ یہی ملے گا کہ جو بھی دنیا بھر میں اسلامی ریکوائرمنٹ ہے, ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے, اس کو فلفل کرنے کی دعوت اسلامی میکسیمم کوشش کرتی ہے. آپ کو وہی جو ایک مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں آپ, چاہے اپنے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں, آپ کو مسجد بھی چاہیے, آپ کو مدرسہ بھی چاہیے, آپ کو جامعہ بھی چاہیے, آپ کو امام بھی چاہیے, آپ کو قاری صاحب بھی چاہیے, آپ کو مبلغ بھی چاہیے, آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت, مؤذن چاہیے, تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب چاہیے. یہ ہمیں لوگ چندہ دے اسی لے رہے ہیں, ہمیں کوئی اس لیے تو نہیں چندہ دے رہے کہ آپ کلینک کھول کے ڈاکٹر بنا دو گے, لیکن پھر بھی دعوت اسلامی کلینک کھول کے ڈاکٹر بھی دے رہی ہے, سبحان اللہ, سب دے رہی ہے. لیکن ایک بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جو ایک مسلمان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے, اب آپ شب معراج آئے گی تو آپ کہیں گے ہمارا اجتماع ہونا چاہیے, شب برات آئے گی تو آپ کا اجتماع ہونا چاہیے, ماہ رمضان کا اعتکاف ہونا چاہیے, تو یہ ہونا, جو آپ کی ضرورت. ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کو قرآن کو بتائے گا, ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دین کون سکھائے گا. یہ ساری جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے, ایک مذہبی ضرورت ہے آپ کے میرے گھر کی, فرد کی نیڈ ہے, ہر فیملی کی نیڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن فیملی ہے نا, اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل تجربے کی بات بیان کرو, بالکل ماڈرن گھر ہے. شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنے نمازی بھی نہ ہوں, لیکن وہ بس ماں باپ کی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں نہیں ہمارا بچہ اگر مدرسے نہیں جائے گا تو قاری صاحب گھر آ کر قرآن پڑھا کر چلے جائیں. تو وہ بھی ہم لوگ دعوت اسلامی یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. تو یوں ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے, اور دعوت اسلامی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ not only in Pakistan, not only in some کچھ areas, all over the world. دعوت اسلامی یہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کے لیے جہاں افرادی قوت چاہیے وہاں پر سرمایہ بھی چاہیے, مال بھی چاہیے, چندہ بھی چاہیے. اور اس کے لیے جو مختلف مواقع آتے ہیں ان میں ایک موقع ہمارا ٹیلی تھون آتا ہے, اور 3 نومبر یہ ہمارا ٹیلی تھون ہے. تو یہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ صدر کے جو ذمہ دار جمع ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ عزم کریں گے, بھائی ٹیلی تھون کرنا ہے نا انشاءاللہ. آپ نے کیا ٹیلی تھون کے لیے, آپ تو ٹیلی تھون کو لیڈ کر رہے ہو, چلو میں نے تو کچھ کلام کر دیا, آپ تو جب بھی آؤ گے تو کچھ چندے بندے کی باتیں زیادہ کرو گے. 10,000 روپے کا پاکستان میں یونٹ ہے, اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں تو ہر ملک کی کرنسی کے لحاظ سے ان کے یونٹ ہم نے بنائے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے, اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ان کی کرنسی کے مطابق یونٹ ہے. تو کم از کم ایک یونٹ, اور اس سے زیادہ ایسا بھی ہو جن کو اللہ نے نوازا ہے, گھر میں جتنے افراد ہیں بچے کو کاؤنٹ کر لیں اور سب کی طرف سے یہ یونٹ دے دیا جائے. صدقے کی نیت سے دیں گے تو بلائیں ٹل جائیں گی. آپ صدقہ واجبہ کے طور پر بھی, زکوٰۃ میں بھی اس کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ ہم نے کئی بار حدیثوں میں سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ ملٹیپلیکیشن ہی ہونا ہے, یہ زیادہ ہی ہونا. پھر امیر اہل سنت نے یونٹ دینے والوں کو, دعوت اسلامی کی ٹیلی تھون میں حصہ ملانے والوں کو بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. اور آپ نے بڑی پیاری ترغیب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی اگر پورا یونٹ نہیں بھی دے سکتا تو 2-4 دوست مل کر, گھر کے 2-4 افراد مل کر ایک یونٹ پورا کر لیں.
में, तो यूँ समझिए कि इतने बड़े दीन के काम में हमें एक पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है। क्या मालूम हमारी थोड़ी सी रकम देने से कोई मस्जिद में लग जाए, कोई हाफिज़ बन जाए, कोई आलिम बन जाए, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहा है जिस काफ़िले के ज़रिए उस काफ़िले में हमारी रकम शामिल हो जाए। तो इतने सारे दावत इस्लामी के काम हैं, तो अगर हम हिस्सा मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मदीना मदीना हो जाएगा। तो कराची वैसे भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव रहता है डोनेशन में, और सदर टाउन तो जिसमें आपने खारा दर भी बताया, शायद क्लिफ्टन डिफेंस भी इसी में शामिल है। तो ये तो शायद दुनियाए दावत इस्लामी के सबसे ज़्यादा अतियात करने वाले इस्लामी भाई नहीं है तो बन सकते हैं, और होना चाहिए ना वन ऑफ द टॉप पे। तो चले ये आपके सामने वाले भी नियत करें, हमारे स्टूडियो वाले भी नियत करें, और मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत करें कि इंशाअल्लाह जिस दावत इस्लामी ने इतना कुछ हमें दिया है, अब वक्त आया कि हम सब मिलकर अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे इंशाअल्लाह। इसमें आपका अभी आगे सेशन है, वो सेगमेंट है जी। मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा तमाम हाज़रीन और नाज़रीन से कि इस पूरे काम को करने के लिए आप समझिए कि शैतान किस कदर इसमें उसकी घबराहट का सिलसिला होता होगा कि यार ये इसको रोके कैसे। तो अब जाहिर है कि क्या रोकेगा, अल्लाह ने चाहा तो ये नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो ये नहीं रोक सकेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बढ़ रही, तरक्की कर रही है। तो आप अपना ये मजबूत जहन बना लें कि हमने अपने वक्त के तौर पर भी और अपने माली तौर पर भी हमने दावत इस्लामी के लिए टेलीथॉन करना है। मैं अभी ये मदनी मुज़ाकर, ये हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा खुसूसी था, यहीं पर एक इस्लाम पे खड़े हुए थे अब्दुल हबीब भाई, उन्होंने कहा था मेरी पोजीशन नहीं थी कि मैं टेलीथॉन दे सकूं, तो मैंने नीयत की थी कि मतलब कि मैं इस बार टेलीथॉन दूंगा, तो इस नीयत पर मैंने बीसी डाली थी अल्लाह कि मेरी बीसी खुलेगी तो सिर्फ टेलीथॉन के लिए। तो इन्होंने कहा कि बस मैं कुदरती तौर पर ये हुआ कि वो नवंबर में ये टेलीथॉन है और मेरी पहली दूसरी बीसी खुल गई, तो ये मैं बीसी के जो पैसे थे ना वो मैं टेलीथॉन में देने के लिए आया हूँ। आप देखिए अब वो अभी कितने महीने तक अपनी बीसी भरता रहेगा, पता नहीं इसका एक यूनिट कितनों के हजारों यूनिट पे भारी होगा। यानी वो बाकायदा यहाँ आया था अमीर सुन्नत को पेश करने के लिए आया था कि मैं आपको ये यूनिट पेश करना चाहूँ। खैर अमीर सुन्नत अल्लाह की तरफ उनकी वो बढ़ा दिया। तो अब ये कि कोई कैसे ये सोच ये रखिएगा कि जो दावत इस्लामी इस दुनिया में दीनी खिदमत कर रही है, उस दीनी खिदमत को बढ़ाने और जारी रखने के लिए हमें अपनी दावत इस्लामी को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करके देना है। ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, और हम चूँकि तंजीम से वाबस्ता हमारी ये ऑर्गेनाइजेशनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम इस्लामी भाई और तमाम इस्लामी बहनें ये अपना जहन बना लें कि हमने अपने इस टेलीथॉन में जो लास्ट ईयर आपने किया था, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आप उसको कम से कम डबल कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना आपने लास्ट टाइम किया था, मैं नहीं कहता आप 10 गुना बढ़ाएं या 25 गुना बढ़ाएं, सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा जितनी भी दावत इस्लामी को डोनेशन देने वाले थे, टेलीथॉन करने वाले, यानी जो करने वाले थे वो भी कहते कि मैं डबल करूँगा, इंशाअल्लाह, जो देने वाले थे वो भी कहते मैं डबल करूँ। यानी अगर आपने 1 यूनिट किया तो इस बार 2 यूनिट दे दें, अगर आपने 10 यूनिट देते तो आप 20 यूनिट कर दें, अगर आपने 100 यूनिट देते तो आप 200 यूनिट कर दें। तो अल्लाह पाक आपको और बरकत, अखराजात भी बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। तो समझ आने वाले को समझ आता है कि चूँकि ये तमाम चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, हमने काम भी नहीं रोका, अल्लाह की रहमत से काम भी बढ़े, मदारिस और जामियात और मसाजिद भी बढ़ी, अब महंगाई भी बढ़ी, इलेक्ट्रिक के बिल सबके बढ़ गए, तो दायरे दावत इस्लामी के हज़ारों मदारिस और जामियात के बढ़ गए। तो निगरान शुरा ने बिल्कुल प्यारी बात फरमाई कि सभी डबल की नीयत कर ले तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। नीयत बनती है, नाजरीन को भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर नीयत बनती है, झूठा हाथ कोई ना उठा, अगर नीयत बनती है कि मैं इस साल 3 नवंबर के जो टेलीथॉन हो रहा है मैं डबल करूंगा इंशाअल्लाह, वैसे डबल की नीयत, जिसकी नीयत बनती है वो हाथ उठाए, डबल की कोशिश करो। अच्छा, स्क्रीन पर जरा जो हमारे अकाउंट नंबर्स भी चला दीजिए और जो इजाजत के अल्फाज हैं वो भी प्लीज लगा दीजिएगा। इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे, डबल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई, आप अपना सेगमेंट जारी रखें। दोनों टीमों के लिए अच्छी ख्वाहिशें, अच्छी तमन्नाएं, लेकिन जाहिर है कि आपकी टीमों में कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक यहाँ का तो मुकाबला है, अल्लाह पाक जन्नत में पीछे ना रखे और बस जन्नत में हम आका के पीछे, जन्नत में पीछे यूं कि आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएं, वहाँ ना रह जाएं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। और किस तरह जन्नत में जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से
या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। निगरान शूरा हम सबको तरगीब दे रहे थे। दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है तो मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखने वाले दुनिया भर के नाजरीन से गुजारिश है वो मदनी चैनल जो मीडिया के ज़रिए हमें घर बैठे बग़ैर किसी फ़ीस के इल्म दीन सिखा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये चैनल, फिर सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में जो हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं, सभी ज़रूर कोशिश करें कि एक एक यूनिट अपने अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आपको हमारा जो अकाउंट डिटेल्स है वो भी लगाई जाएंगी। इन तमाम इजाज़तों के साथ आपने हमें अपने डोनेशंस देने हैं, अकाउंट नंबर्स भी स्क्रीन पर होंगे और इंशाअल्लाह टेलीथॉन वाले दिन भी और वक्तन फ़वक्तन भी दीगर मुल्कों की करेंसीज़ देखें आपके सामने है कि किस मुल्क का क्या यूनिट है, तो अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक अपने मुल्क के दावत इस्लामी के अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। जनाब आते हैं फिर मुकाबले की तरफ और उसको लिए चलते हैं इख्तिताम की तरफ। पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे। जनाब 32 नंबर है टंडो आदम, 31 नंबर है भावलपुर। फैसला हो जाएगा इस सेगमेंट में। दोनों टीमें इस्लाम में खड़े हो जाएं। एक भावलपुर वाले यहाँ आ जाएं, टंडो आदम वाले यहाँ चले जाएं। कोई किराया नहीं, फ्री में आप टंडो आदम से भावलपुर जा सकते हैं। आइए जनाब शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। नूर है इल्म ये नूर से आया है। हर इस्लामी भाई से 5-5 सवाल किए जाएंगे, या तो सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। भावलपुर के मोहम्मद रमजान अत्तारी, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 20 हुरूफ हैं। गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। सही। बहुत पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। ग़ज़वा फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में पेश नहीं आया। गलत। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले मैदान था। सही। जनाब एक गलती गालिबन हुई है आपसे। मस्जिद नबवी की जमीन पर पहले मैदान नहीं था, गलती हुई है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है जमशेद रजा टंडो आदम से। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं। गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। सही। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब एक गलती आपसे भी हो गई है। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब नहीं है। मुश्किल होता है जब इतनी तेजी में सवाल होते हैं। 4-4 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं। अब भी भावलपुर वाले 1 नंबर से पीछे हैं। फैसल अत्तारी साहब की बारी है। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। गलत। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान मुफ्ती कासिम साहब ने नहीं लिखा। सही। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान बदर में शहीद नहीं हुए। गलत। जनाब आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। हजरत अमीर हमजा मैदान बदर में शहीद नहीं हुए, ये सही था। और एक और गलती कौन सी थी जरा बताइएगा। पहली गालिबन गलती की इन्होंने, पहली और आखिरी सवाल में आपसे गलती हुई है। अब चलेंगे हम अब्दुल रहमान टंडो आदम से। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है, आपने कहा गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। सही। नियत करना तयम्मुम का वाजिब है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना वाजिब है। गलत। जनाब अब देखना है कितने गलत और कितनी सही। 2 गलतियां आप भी कर गए हैं जनाब। अब इसका मतलब यह है कि आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं और वही फैसला कर देंगे। टंडो आदम अब भी 1 नंबर से आगे है 39, भावलपुर 38। एक भी गलती मुकाबले को यहां से वहां ले जा सकती है। अब बारी है टंडो आदम के मोहम्मद ताहिर की। अच्छा भावलपुर के मोहम्मद सलमान अत्तारी की। जनाब हुरूफ कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। गलत। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। हर रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं। नमाज की तो 6 शराइत हैं। अब 4 नंबर हासिल किए हैं।
کس نے حاصل کیے ہیں؟ 4 نمبر بھاولپور والوں نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 3 نمبر حاصل کر لیتے ٹنڈو آدم والے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر. 4 نمبر یا اس سے زیادہ حاصل کرتے ہیں تو ٹنڈو آدم والے اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائیں گے. نام ہے محمد طاہر, تعلق ہے ٹنڈو آدم سے. نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا. یہ کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. غلط. حروف مدہ کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. غلط. سارے بدن پر پانی بہانا غسل کے فرائض میں شامل نہیں ہے. صحیح. جناب ایک غلطی کی ہے, 4 نمبر حاصل کیے ہیں, ٹنڈو آدم والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. بڑا ہی کروشل مقابلہ تھا. 1 نمبر سے صرف ٹنڈو آدم والے آگے بڑھے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بھاولپور والے دل چھوٹا نہ کریں, مقابلے میں ابھی وقت ہے. اچھی تیاری کر کے آنا ہے. ہر بدھ کو, اتوار پیر منگل تو 2 ٹیموں کے مقابلے ہوں گے اور بدھ والے دن 3 ٹیموں کا مقابلہ ہوگا جو پیچھے رہ جانے والی ہیں, اور ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ آپ آگے بڑھ کر دکھائیں. تو بھاولپور والوں کو پھر دعوت دیں گے انشاءاللہ بدھ والے دن. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. ناظرین الحمدللہ آپ سے ایک سلسلے کے شروع میں سوال کیا گیا تھا, آئیے چلتے ہیں اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کی طرف. سلسلے کی ابتدا میں جو سوال تھا کہ خادم نبی کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے, درست جواب ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. منتخب اور سلیکٹڈ نام ہمارے پاس کچھ ہیں. بنت احسن حمزہ والا, عظیم علی حافظ آباد, واجد علی شاہ راولپنڈی, زوجہ محمد بلال اتاری کراچی, جنید رضا خان اسلام آباد, بنت شبیر محمد جڑا والا, عبد السبحان بن ارشاد احمد اتاری فیصل آباد, بنت راشد ملتان, بنت بشیر احمد وریام والا, بنت محمد اشرف جہانیہ, بنت مختار خانپور, بنت ارباب گھمبٹ. آج جن کے نام تحفہ جائے گا وہ ہیں بنت راشد ملتان. بنت راشد ملتان ان کا نام آیا ہے, اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں, انشاءاللہ ان تک تحفہ پہنچایا جائے گا. ہم ہر مقابلے میں بیسٹ پرفارمنس کا بھی ایوارڈ دیتے ہیں, تو آج ہم انشاءاللہ محمد طاہر جن کا تعلق نواب شاہ سے ہے ماشاءاللہ ان کو تحفہ دے رہے ہیں. ویسے تو سارے کے سارے 6 کے 6 اسلائی میں بڑے پیارے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. 1 نمبر کا فرق نہیں ہوتا ہے, اسی وجہ سے فرق آ سکتا ہے. تو بہرحال اب اگلی ٹیمیں تیاری کر کے آئیں کہ اتنے کلوز مقابلے ہو رہے ہیں کہ آپ کا 1 نمبر کاؤنٹ ہوگا, تو آپ نے خیال کرنا ہے. جناب کوئز اپلیکیشن کا سوال جس کی قرآن اندازی ہوگی. سوال تھا کہ دانت سے ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے. اس کے آپ کو 4 آپشن اسکرین پر دکھائے گئے ہوں گے. اسکرین پر آئیے دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے, اور پھر ان 5 لوگوں کے آئی ڈیز بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. یہ لکی ڈرا ہو رہی ہے. جناب اس کا صحیح جواب تھا کہ یہ مکروہ ہے, اور جناب کون کون اس میں سے جن کو انعام پہنچے گا وہ آئی ڈیز دیکھتے ہیں. جی یہ اوپر فون نمبر لکھا ہے جہاں آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے, اور یہ 5 آئی ڈیز ہیں جس پر آپ نے, جن کے یہ آئی ڈیز ہے وہ رابطہ کیجئے, آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. اپنی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ جب ہمیں بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تحفہ دیا جائے گا. اب سوال ہے ایک اور جو آپ نے کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے جس کا جواب دینا ہے. جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ وہ جواب آپ نے کل میسج سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کل مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ایسے کام کرے جو اس کو مرنے کے بعد کام آئیں. جواب درست دے دیا ہے. اگر یادداشت ہوئی اچھی تو پھر جواب بھی ہوں گے فوراً, مگر کہیں ہوگا سفر اکیلے اور کہیں ساتھی دیں گے ساتھ, پر حاضر دماغی ہے سب سے بڑا کام. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ 22 اکتوبر 2024 بروز منگل رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16, جس میں ہوں گی خانپور اور سرگودا کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. جناب کل خانپور اور سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ رات 9 بجے ہوگا براہ راست. ضرور شامل ہوں. یہاں بھی جو اسلام بھائی اسٹوڈیو میں آنا چاہتے ہیں ذرا پہلے آ جائیں تاکہ آپ کو اسٹوڈیو میں جگہ ملے اور یہاں بیٹھ کر بھی آپ مقابلوں میں شامل ہو سکیں, کیونکہ یہاں آنے والوں کے درمیان ہوتی ہے قرآن اندازی. اور آج کر رہے ہیں حسن رضا, ایک دونوں سے پرچی نکال کر بتائیں. جناب مدنی منوں کا نمبر ہے 248 248, اور جو بڑے اسلامی بھائی ہیں ان کا نمبر ہے 369 اور 248. جس کے پاس ہے آگے آ جائیں اور تحفہ لیں. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام کا، جنوں ملائک تیرے غلام کا، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب آقا، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ماشاء اللہ۔ آئیے اجتماع کے اختتام کی پہلے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش، دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، شاہ جیلاں غوث پاک